Yes, hello learners. A very good evening to all of you. I hope you are doing well, and this is a premiere class. ठीक है? But if you have any doubt, do let me know in the comment section or leave the comments afterwards. ठीक है? I'll reply them. Since I am not live, so अगर आपको कोई doubts हैं, तो comment करके बताओ. I'll connect through the comments. So today we are going to do revision of rural development. We have finished the chapter in the three classes. Quiz भी कर ली है. Today we are going to do revision of this chapter in a quick mode. जल्दी जल्दी से हम chapter को revise करेंगे. ठीक है. So let's get started with my introduction. So my name is Kanika and I'm your economics educator, as you know, and I teach economics for class 11th and 12th on this platform. 11th की class TTS में होती है and 12th की class MWF में होती है. रोज 8 से 9. And also I have completed my graduation from Lady Shram College, University of Delhi. And let's get started with Unacademy's plus subscription features. So you get to learn live from the comfort of your home after subscribing. Plus ये features आपको मिलने वाले हैं. You have unlimited access to all the courses once you take the plus subscription. You get to learn from the top educators on this platform, and you have regular doubt clearing sessions and answer writing sessions. The answer writing sessions will immensely help you with the presentation part of your answer, and doubt clearing sessions will help you to understand the topic more clearly. ठीक है? हो सकता है कोई चीज बुक में लिखी हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है वो सही नहीं है. ठीक है? इन दैट केसेस डाउट क्लियरिंग सेशंस रियली रियली हेल्प यू. उसके अलावा द एजुकेटर्स आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस, तो आपको सिलेबस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. दे विल रेगुलरली अपडेट यू अबाउट द एडिशन ऑफ द सिलेबस, डिलीशन अगर कोई पार्ट डिलीट हुआ है तो, ऑल दोज थिंग्स. And you get correct mentorship and guidance, all the study materials in the PDF format, various practice tests and live test series. To check how well you are doing. और एक बीच में इन एनी जर्नी एक बार बीच में रुक के बहुत जरूरी होता है जानना कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं. एनी द सेल्फ स्टडी मेथड और एनी मेथड ऑफ स्टडी यू आर फॉलोइंग इज वर्किंग और नॉट, तो उसके लिए यू नीड टू नो कि हाउ मच आई नो एंड हाउ मच आई एम स्कोरिंग इन द टेस्ट. ठीक है? सो फॉर दैट थिंग you have practice test and live test series and access to all the batch courses. Now let's quickly see an Academy's Plus subscription pricing. You can see the pricing on your screen. I won't repeat them for you, but you can use my code, which is KAY10, to get an instant 10% discount. Also, you should go for 24-month subscription since the price per month is least in this case and you'll save upon your money. Very sorry. All right, let's also see Unacademy's iconic subscription features before starting. In Unacademy's iconic subscription, ये आपका प्लस का ही extended version है. ठीक है? प्लस का extended version है. प्लस के सारे features के साथ साथ आपको ये features मिलने वाले हैं. फर्स्ट थिंग इज पर्सनल मेंटर. यू गेट अ पर्सनल मेंटर जिसके साथ आप अपने सारे एकेडमिक कंसर्न्स, डाउट्स हैं, आपको स्टडीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है आप शेयर कर सकते हो. एंड देन लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन. डाउट सॉल्विंग सेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनी वे, बट लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन सॉल्व योर डाउट वेरी क्विकली, तो आपका जो टाइम लैग है वो कम हो जाता है और जल्दी जल्दी से आपके डाउट सॉल्व होते रहते हैं ताकि आप बाकी चीजों पे फोकस कर सको. यू गेट अ वीकली रिपोर्ट कार्ड जिसमें आपको प्रीवियस वीक की परफॉर्मेंस मिलने वाली है, एंड यू कैन यूज दैट टू प्लान योर नेक्स्ट वीक, एंड यू कैन नो कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है, कहाँ पे मुझे काम करने की जरूरत है. योर पेरेंट्स कैन ऑल्सो कनेक्ट. यू गेट अ स्टडी प्लानर टू स्टे कंसिस्टेंट एंड प्लान योर स्टडीज वेल. और साथ साथ सारे प्लस के बेनिफिट्स. ठीक है? अब फटाफट से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइसिंग भी देख लेते हैं. You can see them on your screen. ठीक है? Again, I'll suggest you to go for 24-month subscription and you can use my code. You'll get it in the description box. उसको use करके आपको 10% discount मिलेगा. Now, do join our Telegram channel. Scholars का Scholars करके एक Telegram channel है. ठीक है? Do join that. Now, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. सो बेसिकली हमने चैप्टर पूरा कर लिया है. चैप्टर अगर आपको एट अ ग्लांस देखना है तो चैप्टर में ये चीजें हैं. इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, रूरल क्रेडिट क्या होता है, रूरल बैंकिंग क्या होती है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एंड लास्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉरी, जिसको हम सब्सटैंशियल डेवलपमेंट भी बोलते हैं. ठीक है? तो ये सारा पोर्शन आपका आने वाला है. एंड क्लियरिंग योर डाउट्स रिगार्डिंग बुक. ठीक है? I have taken two books into consideration while making these. NCRT, of course, and Sandeep Garg.
सो बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, वही चीजें लिखी हुई हैं दोनों बुक्स में, बस संदीप गर्मी सब कुछ पॉइंट्स में है, तो आप थ्योरी एकदम पूरा पैराग्राफ वाइज नहीं है, अच्छे से प्रेजेंट करके पॉइंट्स में लिखा हुआ है, और मेजर एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ एक्सटेंडेड चीजें हैं, लाइक संदीप गर्मी कुछ चीजों में पे ज्यादा स्ट्रेस दिया हुआ है, काफी एक्सटेंडेड है, वो मैंने इंक्लूड किया है, और उसके अलावा जो जो भी मुझे लगा आई हैव इंक्लूडेड। So let's start with introduction. Introduction में we have seen कि why is rural development important. हमें रूरल डेवलपमेंट पढ़ना ही क्यों है, सो क्यों पढ़ना है, बिकॉज रूरल डेवलपमेंट पढ़ने के 4 रीजन पढ़े थे हमने, ठीक है। दिस इज यू कैन सी दैट सो मेनी पीपल इन द रूरल एरियाज रिजाइड्स इन पोवर्टी, ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन के नीचे काफी लोग हैं, बिलो पॉवर्टी, बीपीएल जिन्हें हम बोलते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी जो यू नो जो नंबर है वो रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है। सो फॉर रूरल डेवलप फॉर taking our country out of poverty, we need to pay important consideration to the poor of rural areas, तो इसीलिए हमें रूरल डेवलपमेंट पढ़ना जरूरी है। उसके अलावा रूरल इकोनॉमी प्लेज अ इम्पोर्टेंट पार्ट इन द ओवरऑल इकोनॉमी। 60% ऑफ आर इंटायर इकोनॉमी इज रूरल इकोनॉमी, सो दैट सेज कि हमें एज अ कंट्री ग्रो करना है तो रूरल इकोनॉमी को भी ग्रो करना है। उसके अलावा एग्रीकल्चर इज द मेन रीजन, कि एग्रीकल्चर के ऊपर काफी लोग डिपेंडेंट है, इट इज इनकम फॉर रूरल एरियाज, और you can understand the significance of agriculture in rural areas very well. So एग्रीकल्चर को भी एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए, क्योंकि वो काफी स्टेगनेंट और काफी कम रेट पे ग्रो कर रहा है, तो उसको ग्रो करने के लिए हमें रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा द लो डिस्पोजेबल इनकम एंड द मेजोरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज, ठीक है। सो दीज आर फ्यू रीजंस। अगर हम इनको सम अप करें तो 4 पॉइंट्स निकल के आते हैं। इंपॉर्टेंस रूरल इकोनॉमी की, ओवरऑल इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर की स्टेगनेंट कंडीशन, हाई नंबर ऑफ पुअर और पुअर इन रूरल एरियाज एंड उनकी लो डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, ये सारे रीजंस हैं हमारे टू स्टडी द रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, वी हैव स्टडीड कि रूरल डेवलपमेंट सिर्फ एक एक बार करने ऐसा काम नहीं है जो आप एक बार करके छोड़ सकते हो, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या है, वो हर एक एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इनकम के ऊपर ध्यान दोगे या पॉवर्टी के ऊपर ध्यान दोगे, आप उनके सोशल लाइफ के ऊपर भी ध्यान दोगे, जो भी सोशल और इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस है आपका पूरा, उसके ऊपर आप ध्यान दोगे, और आप डेवलपमेंट के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दोगे, ना कि सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर के अलावा भी जो रूरल इकोनॉमी है उसके ऊपर ध्यान दोगे। तो बेसिकली डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, दिस मच यू नीड टू नो अबाउट रूरल डेवलपमेंट। उसके अलावा वी डिड एन एक्टिविटी जिसमें हम देख रहे थे कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे रूरल डेवलपमेंट हमें करने की जरूरत है, या कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे रूरल लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में वी हैव सीन कि एग्रीकल्चर एक स्टेगनेंट सेक्टर हो गया हमारा। एग्रीकल्चर में जो लोग एग्रीकल्चर में हैं वो तो उतने ही हैं, बट उनसे प्रोडक्टिविटी कम आ रही है। सेकेंड थिंग वॉज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्पेशली लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट हो गया हमारा, ठीक है, एजुकेशन लिटरेसी में ही आ गया हेल्थ केयर। तो ये सारे जो ह्यूमंस को एज अ रिसोर्स डेवलप कर दे, ह्यूमंस को एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, उनकी स्किल्स को बढ़ाते हैं, उनको मोर वैल्यूएबल बनाते हैं, तो हमें ह्यूमन एज अ रिसोर्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, या फिर हाउसिंग, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है इन द रूरल एरियाज ना। फोर्थ इज वेरी implied poverty alleviation. Obviously a majority of poor lives in the rural areas, so उनको poverty से बाहर निकालने के लिए we need to focus on the various policies and programs. We have still many policies in place for poverty alleviation. One of the major is मनरेगा, ठीक है, you should know about it. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, land reforms. Land reforms are very very important since we have seen कि रूरल एरिया की मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एग्रीकल्चर है, एंड एग्रीकल्चर को सही से रखने के लिए लैंड सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। देर आर स्टिल मेनी फार्मर्स जो दूसरों की लैंड पे फार्मिंग करते हैं और उनको उतनी बेनिफिट, उनके जितना वो एफर्ट्स डालते हैं उतनी वैल्यू उनको नहीं मिल पाती। सो उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है।
नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट क्या होता है? बेसिकली क्रेडिट होता है पैसे की रिक्वायरमेंट, और आई कैन से लोन। तो रूरल एरियाज में क्या होता है कि देर इज अ ह्यूज टाइम गैप बिटवीन सोइंग द सीड एंड हार्वेस्टिंग द क्रॉप। जब एक फार्मर अपनी फसल उगाता है और वो उसको हार्वेस्ट करता है, उसके टाइम में उसके बीच में काफी टाइम गैप है। और उस टाइम गैप के बीच में अक्सर क्या होता है, फार्मर्स को पैसे की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी है, या अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई है, या फिर कोई फंक्शन है, या कोई रिलीजियस पूजा हवन टाइप्स चीज करानी है, तो उन सब के लिए उनको पैसे चाहिए। बट फार्मर की इनकम तो लास्ट में जब हार्वेस्ट आता है तभी आती है, तो तब तक उनको ऑब्वियसली वो अपनी डेली लिविंग के लिए पैसे सेव कर लेते हैं, बट जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं उनके लिए उनके पास सेविंग्स नहीं होती। तो उनकी वजह से दे नीड अ गुड सिस्टम ऑफ क्रेडिट। ठीक है, रूरल क्रेडिट एक बहुत अच्छा सिस्टम प्लेस में होने की जरूरत है, ताकि फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। नाउ पहले के टाइम में, ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था कि फार्मर्स ट्रेडर्स वगैरह या मनी लेंडर्स वगैरह के पास जाते, वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। फिर उस इंटरेस्ट को देने के लिए फार्मर को और लोन लेना पड़ता, और ऐसे करके वो हमेशा एक डेट की कंडीशन में रह जाते हैं। उनका खुद का जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, now we'll see a timeline basically. This is from NCRT कि 1947, और आई जस्ट जनरल ली है इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता था कि एक्सप्लॉइटेशन बाय मनी लेंडर्स एज वी हैव डिस्कस। उसके बाद इंडिया ने एक सिस्टम अडॉप्ट किया जिसको सोशल बैंकिंग मल्टी एजेंसी अप्रोच बोलते हैं। वेरियस एजेंसीज वर रेडी टू गिव लोन्स टू फार्मर्स। वो 1969 में आया। फिर नाबार्ड हमारा सेटअप हुआ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड काइंड ऑफ अ रिवोल्यूशन इन द बैंकिंग सिस्टम। बेसिकली एक ऐसा बैंक था, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। वो ऐसा बैंक था जो रूरल एरियाज के जो फाइनेंस सिस्टम है उसको रेगुलेट करता था, उसको मॉनिटर करता था, और फार्मर्स को हेल्प करता था। जैसे हमारा आरबीआई ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम को सब रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है, ऐसे ही नाबार्ड इन द रूरल एरियाज। नाउ विल सी द करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन बेसिकली अभी भी फार्मर्स को ऑब्वियसली रूरल क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। उनके पास फिलहाल के टाइम पे दो सोर्सेज हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आपसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, दीज आर नॉन इनफॉर्मल्स। ये हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है। सपोज किसी रिलेटिव से उधार पैसे ले लिए, किसी मनी लेंडर से ले लिए, या कोई कोई आपका फ्रेंड है उससे उधार ले लिया। तो दीज आर इनफॉर्मल सोर्सेज। उसके अलावा आपके इंस्टीट्यूशन सोर्सेज है जिनको हम फॉर्मल सोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आपके कौन कौन आ जाते हैं? बेसिकली एनी इंडिविजुअल जो आपको पैसे देने के लिए तैयार है। इट कैन बी योर रिलेटिव, योर फ्रेंड, योर रिच लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, कोई भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या फायदा होता है, आपको कोलेट्रल की जरूरत नहीं होती। कोलेट्रल इज अ सिक्योरिटी जो आपको लोन लेते टाइम देनी पड़ती है, बेसिकली जिसको हम बोलते हैं गिरवी रखना। किसी ने अपना घर गिरवी रख दिया लोन लेने के लिए। तो जो जनरली जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं, ये कोलैटरल डिमांड नहीं करते। ठीक है, बट ये हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है, हाई इंटरेस्ट। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। बेसिकली फार्मर्स भी ज्यादा इनके पास इसीलिए जाते हैं क्योंकि हर किसी के पास लैंड हाउस ऐसा सब कुछ हो जरूरी नहीं है, और किसी के पास हो सकता है कुछ कोलैटरल ही नहीं हो। ठीक है, बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनके पास कोलैटरल नहीं है, तो वो इंस्टीट्यूशन सोर्सेज के पास नहीं जा सकते क्योंकि वो डिमांड करते हैं कोलैटरल, तो वो नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज के पास जाते हैं। नाउ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या क्या हैं आपके? कोऑपरेटिव क्रेडिट होते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक। बेसिकली ये तीन टाइप के बैंक जो आपके बैंक्स होते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक वी हैव डिस्कस, जो लैंड को कोलैटरल रख के आपको लोन देते हैं। कमर्शियल बैंक रीजनल रूरल बैंक जो स्पेशली रूरल एरियाज के लिए होते हैं। गवर्नमेंट से भी लोन ले सकते हैं, नाबार्ड तो है ही। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो खुद में ग्रुप्स बना के एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट। अब यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली ये है कि ऑलमोस्ट ऑल द सोर्सेज जो हैं वो कोलैटरल डिमांड करते हैं। ठीक है, ये कोलैटरल डिमांड नहीं करता कोऑपरेटिव क्रेडिट, एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कोलैटरल डिमांड नहीं करते। आई थिंक बाकी सारे ऑलमोस्ट कोलैटरल डिमांड करते हैं, और उसकी वजह से काफी सारे फार्मर्स इनको अफोर्ड नहीं कर पाते। बट दे हैव रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट वो रीजनेबल रखते हैं।
नाउ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग विच मीन्स कि हम देखेंगे कि रूरल बैंकिंग की पॉजिटिव्स क्या थी एंड नेगेटिव्स क्या थी. सो फर्स्ट पॉजिटिव्स, फर्स्ट थिंग वाज कि आपके जो एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है, वो बढ़ा है. बेसिकली जो सारे क्वांटिटेटिव फैक्टर्स है, आपकी एम्प्लॉयमेंट हो गई, इनकम हो गई, वो बढ़ी है, पॉवर्टी कम हुई है, तो ये सब है. स्पेशली आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, आई होप यू नो द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो इसको एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन आई थी जिससे हम सेल्फ सफिशिएंट बने थे, जिससे हमारा प्रोड्यूस इतना होता था कि हम एक्सपोर्ट तक करने लगे थे. ठीक है, अभी भी होता है. नाउ दिस वाज द फर्स्ट पॉजिटिव्स कि आपकी इनकम, एम्प्लॉयमेंट और बेसिकली एक ओवरऑल अपलिफ्टमेंट हुआ था रूरल एरिया का. उसके अलावा फार्मर्स को वैरायटी ऑफ लोन्स सभी मिलने लगे थे और उनकी नीड्स थी वो पूरी होने लगी थी. उसके अलावा हमारे कंट्री में क्या अच्छी चीजें हुई थी कि पहले हमारी कंट्री में काफी फेमाइन्स या ड्रॉट्स की सिचुएशन आ जाती थी कि कभी किसी साल अगर प्रोड्यूस कम हुआ है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी. बट हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए, हमारे पास एक्सपोर्ट करने तक का अगर फूड ग्रेन्स आ गए हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव मेंटेन सम इन द बफर स्टॉक. हमारे पास कुछ बफर स्टॉक भी होता था, जिसकी वजह से बफर स्टॉक की वजह से अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वी कैन यूज देम. तो जो फेमाइंस वगैरह थी वो पास्ट की सिचुएशन हो गई थी, बेसिकली वो अब नहीं होता था. वी केम ओवर दैट. ठीक है, so these were three things that were positive. Now we'll see negatives. Negatives basically क्या क्या कमियां हैं जो हम अभी भी पूरी कर रहे हैं, ठीक है, करने की कोशिश कर रहे हैं. फर्स्ट थिंग इज insufficiency और it can be related to inadequate amount of action. बेसिकली हर किसी को एक्सेस नहीं है, जो बेसिकली गवर्नमेंट ने जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लिए हैं, हर किसी को हर कोई उनसे जाके लोन नहीं ले सकता, बेसिकली कोलैटरल की कमी की वजह से, या और भी उतनी वाइड कवरेज नहीं है उनके कि हर एक तक पहुंच सके. उसके अलावा जब वो लोन भी देते हैं तो वो एक लिमिटेड अमाउंट देते हैं और हो सकता है फार्मर्स को उससे ज्यादा की जरूरत हो. सो इनएडिक्वेट अमाउंट एंड इनसफिशियंसी सॉरी का मतलब होता है कि वो हर किसी तक नहीं पहुंच पा रहे. इनएडिक्वेट अमाउंट मतलब वो जिन तक पहुंच पा रहे हैं उनको भी पूरी अमाउंट नहीं दे पा रहे. ठीक है, दिस इज द सेम पॉइंट. इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, लेस अटेंशन टू पुअर एंड मार्जिनल. ठीक है, फार्मर्स को लोन तो मिल रहा है बट जिनको एक्चुअली जरूरत है, क्योंकि नॉट एवरी फार्मर इज पुअर, ठीक है, रिमेंबर दैट. तो जो एक्चुअली पुअर फार्मर है या मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके लिए सब कुछ किया जा रहा है, जिनकी जरूरत है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. एंड ग्रोइंग ओवरड्यूज, बेसिकली फार्मर्स ने काफी बार क्या होता है कि वो लोन पे बैक नहीं कर पाते ड्यू टू वेरियस कंडीशन. क्योंकि ठीक है, अपनी अपनी कंडीशन होती है, तो उनकी वजह से वो लोन पे बैक नहीं कर पाते, या वो करना कभी कभी क्या होता है, कोई कोई करना भी नहीं चाहता. तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा ओवरड्यूज हो जाते हैं. ठीक है, so we can obviously improve the situation of these प्रॉब्लम्स. क्या कर सकते हैं कि फार्मर्स के अंदर एक सेविंग की हैबिट होनी चाहिए. हमारे जो सोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूट सोर्सेज, उनकी रीच बढ़ानी चाहिए, उनकी अमाउंट बढ़ानी चाहिए, एंड गवर्नमेंट को बजट में ज्यादा पैसा अलोकेट करना चाहिए टुवर्ड्स दिस सेक्टर. सो वेरियस थिंग्स वी कैन डू. Some of these things we can do is these only. Just let me check the time first, okay? Okay, I think 25 minutes. So yes, now we'll see agriculture market system. Agriculture marketing basically वो क्या होता है? We have discussed कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या क्या आता है. ठीक है, समझो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सोइंग ऑफ द सीड टिल द हार्वेस्टिंग. फसल उगाने से लेकर काटने से लेकर उससे भी बाद जो भी फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाता है, कंज्यूमर तक पहुंच जाता है, तब तक जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आते हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसमें क्या क्या आता है? असेंबलिंग ऑफ गुड्स, स्टोरेज ऑफ गुड्स, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, और आई कैन से फूड ग्रेन्स और क्रॉप, ट्रांसपोर्टेशन, हार्वेस्ट सॉरी, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन,
ये सारी चीजें होती हैं, इन सबको मिला दें हम अगर, तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ऑब्वियसली जो आप जो आप ब्रेड का पैकेट खाते हो वो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से ही आया है, बट वो आप तक पहुंचता है तब तक बहुत सारी चीजें हो जाती है, ठीक है, बीच में उसको पैक भी किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है, उसको ग्रेड भी किया जाता है, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट्स, ये ब्रांड वो ब्रांड सब कुछ किया जाता है, फिर आप तक लास्ट में रिटेल स्टोर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। तो एक ब्रेड का पैकेट आप तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी चीजों के थ्रू जा चुका होता है, और उस सारे प्रोसेस को ही हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स? अब आप खुद सोचो कि इस पूरे प्रोसेस में फार्मर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, विल सी दैट। क्या? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, क्योंकि फार्मर्स के पास इनफ स्टोरेज नहीं होती, ठीक है, वेयर हाउस या वेयर हाउस, या हो सकता है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, या गैराज वगैरह, मतलब ऐसे चीजों की जरूरत है जहां पे फार्मर्स अपने फूड ग्रेन को स्टोर करके रख सके, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो स्टोर कर पाएंगे तो वो उसको तभी बेचेंगे जब मार्केट में अच्छा प्राइस मिल रहा होगा, वो मजबूरी में उसको किसी भी प्राइस के ऊपर नहीं बेचेंगे। सेकेंड थिंग इज एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम ट्रेडर्स। ट्रेडर्स फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं बाय मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स और फॉल्टी वेइंग, ठीक है, इन सब तरीकों से फार्मर्स, और बहुत और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके थ्रू ट्रेडर्स फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वी आर सीइंग द प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मर। उसके अलावा उनके पास प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, बेसिकली उनको पता ही नहीं होता कि उनके जो कमोडिटी है उसका मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। ऑब्वियसली उनकी इतनी लिमिट, उतनी वाइडर रीच नहीं है, ठीक है। सो नाउ सिचुएशंस हैव चेंज, लेट्स सी कि गवर्नमेंट ने सिचुएशंस को चेंज करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज रेगुलेटेड मार्केट्स। गवर्नमेंट ने सारे मार्केट्स को रेगुलेट कर दिया कि दिस इज द मार्केट प्लेस एंड दिस इज वेयर यू नीड टू सेल एंड ट्रेडर्स विल बाय, और ये सिस्टम होगा, ये रूल्स होंगे, ये रेगुलेशंस होंगे। तो मार्केट्स एक लॉ के अंडर आ गए, और उन ट्रेडर्स को, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना मुश्किल हो गया, ठीक है। दे स्टिल डू एंड दे यूज टू डू, ठीक है, वो करते रहेंगे, बट वी नीड टू रिड्यूस दोज अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज, जो जिनकी फार्मर्स को जरूरत होती है, वो सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने अलग अलग विलेजेस में लानी शुरू की, और दे स्टार्टेड कनेक्टिंग विलेजेस टू द वेरियस सिटीज। तो उसकी वजह से भी गवर्नमेंट अपने जो, इफ दे डोंट वांट टू सेल टू दिस एपीएमसी, तो वो दूसरी मंडी में जाके बेच सकते हैं। सो दिस इज हाउ इंफ्रा फैसिलिटीज हेल्प। उसके अलावा कोऑपरेटिव मार्केटिंग में डिस्कस दैट। उसके अलावा डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जैसे एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक सपोर्ट प्राइस जो फार्मर्स को एक सेफ गार्ड होता है, उनको एक एक मिनिमम गारंटी देता है कि मेरा जो प्रोड्यूस है वो इससे कम में नहीं बेचा जाएगा, इससे ज्यादा में ही कोई खरीदेगा या इतने में खरीदेगा। बफर स्टॉक्स गवर्नमेंट मेंटेन करने लगी, गवर्नमेंट इंटरवीन करने लगी, आके फार्मर्स से उनका प्रोड्यूस खरीदने लगी, ऑब्वियसली एट अ गुड प्राइस। एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें बीपीएल वाले जो लोग होते हैं, वीकर सेक्शन हमारी सोसाइटी का, उनको एक रीजनेबल रेट पे, जो मार्केट है उससे कम रेट पे, जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन्स होते हैं, जैसे राइस, व्हीट वगैरह अब मिलता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सब फार्मर्स को भी हेल्प करता है, क्योंकि उनसे कुछ कोई ना कोई तो खरीद रहा है अच्छे प्राइस में, और ऑब्वियसली एज ए इकोनॉमी भी हमें हेल्प करेगा, और गवर्नमेंट को भी हेल्प करेगा, और एज अ कंट्री हम फेमाइन वगैरह की सिचुएशन सफर नहीं करेंगे। सो दीज आर थ्री पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, एंड वी हैव सीन दोस। नाउ विल सी दिस कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ठीक है, विल सी इट नेक्स्ट। नाउ कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है? दिस इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग, सॉरी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बहुत सारे लोग, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास, बहुत सारे लोग एक साथ आके अपना जो रिसोर्सेज है, या वी कैन से मनी को पूल करते हैं, और उनके पास जब एक अच्छी अमाउंट हो जाती है, उसको वो लोन देते हैं किसी भी मेंबर को जिसको जरूरत होती है। सो ऐसा ही कॉन्सेप्ट है हमारा कोऑपरेटिव फार्मर, जिसमें सारे फार्मर्स एक साथ आते हैं,
ठीक है। और वो जितना भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको इकट्ठा करके इसको मार्केट में सेल कर देते हैं, और जो भी उससे प्राइस मिलता है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है। सो ये क्या है कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। इसमें आई रिपीट अगेन सिंस इट इज इम्पोर्टेंट कि सारे फार्मर्स एक साथ आते हैं, अपना जो भी उनका हार्वेस्ट होता है उनको एक साथ रखते हैं, फिर उसको सेल करते हैं एक साथ ही, और जो एक साथ पैसा मिलता है लास्ट में उसको डिवाइड कर लेते हैं शेयर के हिसाब से कि जितने सॉरी जिसने जितना शेयर दिया उतना। नाउ दिस इज अ वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट, इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं, दिस इज ऑन राइस। ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग इज इम्प्रूव्ड बार्गेनिंग पावर, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। इम्प्रूव्ड बार्गेनिंग पावर का मतलब क्या होता है कि अगर एक फार्मर अकेला जाके बार्गेन करेगा या नेगोशिएट करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको अपना प्राइस कन्विंस ट्रेडर को कन्विंस करने में कि मुझे इसी प्राइस पे बेचना है। बट अगर सारे फार्मर्स एक साथ जाएंगे तो वो यूनिटी की पावर आ जाएगी और उनको बार्गेन करने की, दे विल हैव दैट पावर ऑफ नेगोशिएट एंड बार्गेनिंग। तो वो दैट पावर ऑफ यूनिटी विल शो, और वो एक अच्छा रेट ले पाएंगे अपने प्रोड्यूस के लिए। सेकेंड थिंग इज स्टोरेज फैसिलिटीज। स्टोरेज फैसिलिटीज में क्या होता है कि हमने देखा फार्मर्स के पास स्टोरेज फैसिलिटीज की कमी होती है और उसकी वजह से उनको कितना नुकसान होता है। सो स्टोरेज फैसिलिटीज में जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है वही आपस में एक दूसरे की स्टोरेज यूज करे, या सोसाइटी की कोई सॉरी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी की कोई स्टोरेज हो, उसको यूज करके दे कैन वो स्टोर देयर हार्वेस्ट, और वो तभी बेचेंगे जब उनको अच्छा प्राइस मिलेगा। उसके अलावा इफ दे वांट टू सेल टू समवेयर टू अ बिग सिटी, तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, और अगर वो साथ में ले जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगी वो भी कम हो जाएगी। नाउ देर आर emerging alternate मार्केटिंग चैनल्स। ये तो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल है जो मंडीज के थ्रू हार्वेस्ट जाता है। बट इसके अलावा जो आजकल ट्रेंड में चल रही हैं, जो एमर्ज हो रहे हैं, वो दो चीजें हैं। फर्स्ट इज द फार्म मार्केट। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ओनली थिंग यू नीड टू नो इज, सॉरी, एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। जो आपका बीच में मिडिल मैन है उसको एलिमिनेट करके डायरेक्टली फार्मर्स अपना प्रोड्यूस जिसको जरूरत है उसको बेचते हैं। ठीक है। उससे क्या होता है, मिडिल मैन का प्रॉफिट कम हो जाता है, एंड फार्मर्स बेनिफिट्स, उसके उनकी इनकम इंक्रीज होती है। नाउ द सेकेंड थिंग इज अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। जो नेशनल कंपनीज होती हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि बेसिकली जो आपका क्रॉप होती है उसको प्रोड्यूस करने से पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं कि आई प्रोड्यूस नो दीज मैनी किलोज कॉटन फॉर यू, और आपको ये इस रेट पे खरीदना है, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। तो मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनीज को इनकी जरूरत भी होती है। तो बेसिकली इससे क्या होता है, प्राइस रिस्क कम हो जाता है क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन हो चुका होता है। एंड इससे क्या होता है कि फार्मर्स दे आर उनको इंसेंटिव मिलता है टू प्रोड्यूस द डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स। क्योंकि एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा ज्यादातर जो तीन चार क्रॉप्स ही हैं जो मेजरली उगाई जाती है, ठीक है, हर जगह के हिसाब से। बट दे कैन बी डाइवर्सिफाइड। तो इन नेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की डिमांड्स अलग होती है, और उनकी डिमांड्स के हिसाब से फसल उगाने के चक्कर में फार्मर्स विल डाइवर्सिफाई, तो उनको एक डाइवर्सिफिकेशन का भी इंसेंटिव मिलता है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है। Now we'll see the recent farm laws which were passed in the parliament in the year 2020, जिनके ऊपर काफी debate, discussions and all various things are happening. ठीक है। So basically we won't go into that. I'll just state the factual information in front of you जो भी I have got. So the first law is the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act.
ये क्या बोलता है कि जो फार्मर्स है वो अपना प्रोड्यूस कहीं भी सेल कर सकते हैं बेसिकली। या तो वो इलेक्ट्रॉनिकली सेल कर सकते हैं या ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर सकते हैं, या यू नो जहां भी उनको अच्छा प्राइस मिले वहां पे सेल कर सकते हैं। इट परमिट्स सेल एंड परचेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ एपीएमसी मंडीज। जनरली फार्मर्स एपीएमसी मंडीज में अपना प्रोड्यूस बेचते हैं, बट दिस एक्ट अलाउज कि वो कहीं पे भी जहां पे भी उनको अच्छा प्राइस मिला वहां पे बेच सकते हैं। Second law is Farmers Empowerment in Production Agreement of Price Assurance and Farm Services Act। इसमें क्या होता है कि फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की परमिशन मिलती है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वही है, आपका कॉन्सेप्ट है कि वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और नेशनल कॉर्पोरेशन के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम इस रेट पे आपको इतना प्रोड्यूस बेचेंगे, तो उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं, और वो करने की परमिशन देता है ये एक्ट। ठीक है। तो थर्ड एक्ट इज आर एसेंशियल कॉमोडिटी कॉमोडिटी में अमेंडमेंट। ठीक है, ये आपका अमेंडमेंट है। तो एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट क्या था कि फ्यू कॉमोडिटीज लाइक पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, फूड ग्रेन्स और अनियन, ये आपका एक एसेंशियल कॉमोडिटी होती थी। ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि एक फार्मर इससे ज्यादा, ठीक है, एक लिमिट स्पेसिफाई थी, इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता इस कॉमोडिटी को, और ऑब्वियसली स्टोर नहीं कर सकता तो वो बेचेगा। बेसिकली द कॉन्सेप्ट ये था उसके पीछे कि जो एसेंशियल कॉमोडिटीज हैं जैसे फूड ग्रेन पल्सेस हैं, वो सबको जरूरत होती है। अगर फार्मर्स उनको स्टोर करके रखने लग जाएंगे तो इकोनॉमी में उनका प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक बेसिक फंडा था उनके पीछे, इस एक्ट के पीछे। बट नाउ द गवर्नमेंट सेज कि ऐसा कुछ लॉ नहीं है, आप जितना स्टोर करना चाहो उतना कर सकते हो। बट देर इज एन एक्सेप्शन कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन या क्राइसिस की सिचुएशन में आपको जो ये एक्ट है इसमें अलग से रूल्स एंड प्रोविजंस हैं, वो बहुत डिटेल में हो जाएगा। सो दिस इज योर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कि एक्सेप्ट इन द केस ऑफ क्राइसिस आप जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनको कितना भी स्टोर कर सकते हो। So these are the three farm laws that were passed. Now we'll see diversification of agricultural activities। दो तरीके से डाइवर्सिफिकेशन होता है, या तो हो सकता है या तो क्रॉप प्रोडक्शन या प्रोडक्शन एक्टिविटीज। जो आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है ये विद इन एग्रीकल्चर होता है। ठीक है। एंड ये आउटसाइड एग्रीकल्चर होता है। विद इन एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर में फॉर एग्जाम्पल समबडी प्रोड्यूसेस राइस एंड कॉटन। ठीक है, वो दो ही क्रॉप प्रोड्यूस करता है, तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, वो तीन चार क्रॉप ऐसी है जो ऑफ सीजन है या दूसरे सीजन में वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग बेसिकली। ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्शन फार्मिंग में क्या होता है कि एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके थ्रू रूरल डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हॉर्टिकल्चर, ठीक है, फिशरीज या आईटी। ठीक है। विल सी देम इन डिटेल अभी, बट दिस इज द अंडरलाइन कॉन्सेप्ट जिसमें प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एक विद इन एग्रीकल्चर है, एक आउटसाइड एग्रीकल्चर है। सो वी हैव सीन दैट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज शिफ्ट फ्रॉम द सिंगल क्रॉप टू मल्टीपल क्रॉप्स। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, आपकी दो टाइप की क्रॉप्स होती है, फूड ग्रेन्स की क्रॉप होती है, एक आपकी कैश क्रॉप होती है। ये होती है आपकी जो बेसिक नेसेसिटी होती है लाइफ के लिए, जैसे राइस, वीट, मेज, ये सब हो गया। ठीक है, ये आपकी फूड क्रॉप है। नाउ फार्मर्स क्या करते हैं, ज्यादातर फार्मर्स फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो ना सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से नहीं करते, वो एक अपनी लिविंग चलाने के लिए, सब्सिस्टेंट टू सरवाइव, दे प्रोड्यूस फूड क्रॉप्स। जितना उनको अपने पास रखना होता है रख लेते हैं, बाकी बेच देते हैं। बट देर हैज टू बी अ शिफ्ट बिटवीन फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। क्या होती है, जो आपकी फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, कॉफी, जिनको मेजरली प्रॉफिट मोटिव से उगाया जाता है। तो बेसिकली फार्मर्स जनरली फूड क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, बट वो ऑफ सीजन में या मतलब पूरा ही शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड कैश क्रॉप्स। उनसे उनका रिस्क कम होगा और उनकी इनकम इंक्रीज होगी। नाउ प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या है कि एग्रीकल्चर के अलावा कहाँ कहाँ पे फार्मर्स एक एक्स्ट्रा इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर तो है ही, ठीक है, एग्रीकल्चर, बट एक जो फार्मर है वो पूरे 24 घंटे एग्रीकल्चर में नहीं स्पेंड करता। ठीक है। ही हैज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट विद हिम जो वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसके लिए जनरली क्या करते हैं, लाइव स्टॉक होता है सबके घर में,
जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको रखते हैं एंड दे गेट प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट. फॉर एग्जाम्पल इन समबडी हैज अ काउ, तो उसका मिल्क या घी या एनी, दे कैन सेल एनीथिंग और उससे प्रॉफिट होता है. तो ये सारी एक्टिविटीज क्या है, एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करती है, सपोर्ट करती है और फार्मर्स को एक एक्स्ट्रा इनकम देती है, उसके साथ साथ एक एक बैकअप ऑप्शन और एक रिस्क कम कर देती है. ठीक है. विच मीन्स कि अगर क्रॉप के साथ, एग्रीकल्चर के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो एटलीस्ट उनके पास जो अपनी लिविंग है, जो बेसिक नेसेसिटी है, उसके लिए तो पैसे बचेंगे थ्रू द अदर सेक्टर्स. ठीक है. अब दीज अदर सेक्टर्स कैन बी टूरिज्म, इफ यू नो somebody इज फ्रॉम अ स्टेट जहाँ पे बहुत सुंदर सीनिक ब्यूटी है या ऐसा कुछ है जो टूरिज्म बहुत अच्छा चल सकता है. टूरिज्म चल सकता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकती है, लेदर इंडस्ट्री हो सकती है, और बेसिक तो है ही आपकी पोल्ट्री फार्मिंग है, फिशरीज है, लाइफ स्टॉक है, various things. बट इसके लिए देर हैज टू बी अ गुड रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होने की जरूरत है. नाउ दीज आर योर प्रोडक्शन एक्टिविटीज. Okay, we have around 25 minutes. तो बेनिफिट्स एंड रीजंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, मतलब इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं. फर्स्ट बेनिफिट इज रिड्यूसिंग रिस्क. आपका रिस्क कम हो जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आप बारिश कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आपके ऊपर कोई पेस्ट अटैक हो गया क्रॉप के ऊपर, सॉरी, तो आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते. सो बहुत सारी चीजें हैं एग्रीकल्चर में, क्लाइमेट है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते. सो इनके चलते रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है एग्रीकल्चर में. उसके अलावा अगर आपका रिस्क भी नहीं है, सब कुछ सही है, तो एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है आपको. तो ये बेनिफिट्स हैं और यही रीजन है डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए. नाउ विल सी द नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो एरियाज जहाँ पे फार्मर्स एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर. ठीक है. क्या क्या हो सकता है, फिशरीज, डेयरिंग, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, आईटी. ठीक है. विल सी देम वन बाय वन नाउ. फर्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, बेसिकली ब्रीडिंग, रेयरिंग और केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स. जो कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो लोग रखते हैं घर में या फिर जहां भी रखे, तो उनसे कुछ बेनिफिट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ somebody हैज अ काउ, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल अगेन, तो दे कैन सेल इट्स मिल्क. तो वो सारे बेनिफिट्स होते हैं आफ्टर ब्रीडिंग, रेयरिंग, केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स. इसको हम लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम. आई राइट इट हियर. ठीक है. नाउ द क्विक फैक्ट कि इंडिया ओन्स लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. इंडिया में लाइफ स्टॉक की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. बट देर इज अ ड्रॉप, देर इज अ अनदर साइड ऑफ दिस पिक्चर, अनदर साइड ऑफ दिस फैक्ट आई शुड से, कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो है बट प्रोडक्टिविटी नहीं है उतनी. ठीक है. एज कंपेयर टू पॉपुलेशन, प्रोडक्टिविटी नहीं है. उसके अलावा विमेन कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट. ठीक है. एग्रीकल्चर इज बेसिकली मेजरली अ मेंस डोमिनेटेड एरिया. ठीक है. नाउ सिचुएशंस आर चेंजिंग बट अभी भी इट इज अ मेन डोमिनेटेड एरिया. सो बट लाइफ स्टॉक वगैरह में क्या हो सकता है, ऑल्टरनेट एरियाज में विमेन की एम्प्लॉयमेंट भी मैटर करती है और वो काफी हेल्प कर सकती है. नाउ द पोल्ट्री अकाउंट्स फॉर 58%. ठीक है. इसमें बेसिकली काफी चीजें हो सकती है, काउज हो सकती हैं, कैमल, या अलग अलग एनिमल्स होते हैं जिनको लोग रखते हैं. तो इसमें बेसिकली पोल्ट्री फार्मिंग आपका सबसे ज्यादा है विच इज 58%. एंड आई थिंक सेकंड पे आपका काउ है, आई थिंक. ठीक है. नाउ द क्रिटिकल अप्रेजल विच मीन्स विल सी कि कुछ गड़बड़ है, कुछ नेगेटिव्स हैं, वो देखेंगे हम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है. तो इम्प्रेसिव नंबर बट लो प्रोडक्टिविटी. वी हैव सीन कि नंबर्स तो बहुत इम्प्रेसिव है, डेटा अच्छा है देखने के लिए कि सबसे ज्यादा हमारे पास लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, बट उससे प्रोडक्टिविटी कितनी मिल रही है वो भी देखनी जरूरी है. दैट इज लो. so this needs to be improved and this is a very something that should be that should that needs attention, that should be focused on.
सेकेंड थिंग इज नीड फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रमोशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी और प्रमोशन की तो रूरल एरियाज में इन एनी एरिया अभी भी बहुत सारा, देर इज सो मच अपॉर्चुनिटी जहाँ पे टेक्नोलॉजी और प्रमोशन वगैरह, प्रमोशन लीव, लेट्स लीव प्रमोशन, लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। तो काफी सारे एरियाज हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी के आने से बहुत कुछ इम्प्रूव हो सकता है। इन अर्बन एरिया स्टिल सब जगह नेट वगैरह, इंटरनेट कनेक्शन, डिवाइसेस काफी हद तक कवर हो चुका है, बट रूरल एरियाज में अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है इन सब चीजों की, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दीज थिंग्स। ऑब्वियसली प्रमोशन भी नहीं है। Second, third thing, the negatives we are seeing basically in the appraisal, कि एक तो क्रेडिट फैसिलिटी जो हमने डिस्कस कर ही लिया कि लोन वगैरह की चीजें, एक जो लाइफ स्टॉक की केयर करने के लिए जो वेनेटरी केयर यूनिट्स वगैरह हैं वो भी बहुत कम है। देर आर फ्यू यूनिट्स बट दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। So these are few things that needs attention and needs to be focused. Now डेयरिंग बेसिकली, डेयरिंग आपका डेयरी से आता है, विच मीन्स मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, देर आर वेरियस एनिमल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उस मिल्क को प्रोड्यूस करके, स्टोर करके, डिस्ट्रीब्यूट करके भी इनकम कमाई जा सकती है। एंड यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद दीज थिंग्स, आई नो। सो डेयरी एनिमल्स जो आपके काउ बफेलो वगैरह होते हैं, उनको ब्रीड, उनको रेज और सेलिंग देयर प्रोड्यूस। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन, दिस इज द फैक्ट यू नीड टू नो, इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू। कि आपको पता होना चाहिए कि अगर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहीं मिल्क का प्रोडक्शन है तो वो इंडिया में है। एंड द सक्सेस, और यू कैन से दिस फैक्ट हैज अ रीजन विच इज ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जिसको हम शायद व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होता है ऑपरेशन फ्लड, और जिसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। इट वाज स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन द 1970 एंड इट्स चेयरमैन वाज डॉक्टर वर्गेश कुरी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या थे बेसिकली, जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना, और सारे जो फार्मर्स है बेसिकली उनको एक साथ लाके। ठीक है, दिस इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो मिल्क कोऑपरेटिव्स है बहुत ज्यादा है, और वहां पे कोऑपरेटिव मतलब एज अ यूनिट फार्मर्स एक साथ आते हैं, और वो अपना मिल्क, जो प्रोड्यूस है उनके लाइफ स्टॉक्स का, वो सेल करते हैं। So farmers pool their milk produce according to different grades, processed in through cooperative to urban centers. Basically वही है, रूरल से अर्बन तक पहुंचता है, पहुंचने से पहले पैकेजिंग, मार्केटिंग, ग्रेडिंग सब कुछ हो जाता है। एंड फार्मर्स, दिस इज अगेन अ कोऑपरेटिव। अगर यहाँ पे कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाए तो दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू। सो ये ऑपरेशन फ्लड थी, व्हाइट रेवोल्यूशन थी, जैसे एग्रीकल्चर में हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन थी, यहाँ पे मिल्क में, हमारे डेयरिंग में व्हाइट रेवोल्यूशन थी, ऑपरेशन फ्लड। इसकी वजह से इंडिया was on the number one. ठीक है, now let's see another non farm area which is fisheries. ठीक है, fisheries has a 0.8% share in the GDP. ठीक है, 0.8% शेयर अकेले फिशरीज का है इन द जीडीपी। फिशरीज आई होप यू नो, फिश से आया है, कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। सिर्फ फिश नहीं है, और भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं। मेजर स्टेट्स हैं बेसिकली वही जो कोस्टल एरियाज में होंगे, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ठीक है, ये मेजर स्टेट हैं जिनमें फिशरीज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ काफी प्रॉब्लम्स फेस करी जाती हैं फिशरीज में। व्हाट आर दीज, की वाइड स्प्रेड अंडर एम्प्लॉयमेंट, काफी ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, पर कैपिटा इनकम कम है, और मोबिलिटी ऑफ लेबर टू अदर सेक्टर्स और कम है। लिटरेसी रेट भी, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस, सो आई वोंट गो इनटू डिटेल। इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, और इनडेटनेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो फिशरीज वाले फार्मर्स फेस करते हैं। उनकी इनकम का बहुत कम होती है, दूसरे सेक्टर्स में जाने के चांसेस कम होते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर में आपके पास इतना टाइम बच जाता है, आप दूसरी एक्टिविटीज भी कर सकते हो, बट यहाँ पे यू डोंट गेट दैट मच टाइम। ठीक है, नाउ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर इज कल्टीवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, मेडिसिन, बेसिकली आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह को उगाना और उनको बेचना, वही सब आपका हॉर्टिकल्चर है। नाउ द मेजर थिंग यू नीड टू नो इज इसका 6% कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में, दैट इज ह्यूज। और एग्रीकल्चर में भी इट हैज अ मेजर शेयर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट
फिगर, बट हाँ एग्रीकल्चर में भी हॉर्टिकल्चर का काफी मेजर शेयर है। एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। कमेंट करो कि फर्स्ट फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है। एंड यस, गोल्डन रिवॉल्यूशन इसमें हुआ था। जैसे हमारा अभी हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन पढ़ा था, यहाँ पे गोल्डन रिवॉल्यूशन है, वही चीज है। एक सेक्टर को पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज कर देना, उसको इम्प्रूव करना बहुत हद तक, वही आपका रिवोल्यूशन है। ठीक है। एंड कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, यू नो, यू हैव सीन ऑल दिस। आई थिंक दिस मच इज वी नीड टू नो द हॉर्टिकल्चर। Now, information technology, basically this is something that can complement every sector. ठीक है। आपके हर एक सेक्टर को बेटर बना सकता है, बीट एग्रीकल्चर, बीट फिशरीज, बीट एनीथिंग। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो बेसिकली आपको बहुत हेल्प करने वाली है। दिस इज अ न्यू थिंग। तो एंड इट हैज अ ह्यूज स्कोप, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। तो अभी उतना नहीं आया है, तो इट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वेरियस थिंग्स, लाइवलीहुड टू वेरियस people, and it can complement many sectors as we have seen. So basically, I hope you know what is IT, information technology, basically use of computer and telecommunication to retrieve, store and transmit information. ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ सकता है इन द रूरल इकोनॉमी। Now we have seen the non-farm areas, we'll see sustainable development. ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, कि बेसिकली आपको पता होगा कि फार्मिंग वगैरह के लिए काफी सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज होते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग उन सारे फर्टिलाइजर्स के अलावा जो आपका नेचुरल मैन्योर होता है, कंपोस्ट होता है, और बेसिकली नेचुरल चीजों से या नेचुरल टेक्निक से जो क्रॉप है उसको प्रोड्यूस करना। ठीक है। और उसकी वजह से आपका इकोलॉजिक, उसकी वजह से आपके काफी फायदे होते हैं। फर्स्ट फायदा तो आपकी हेल्थ को होगा। ठीक है, बेसिकली जो खाएगा उसकी हेल्थ को होगा। सेकंड फायदा होगा इन्वायरमेंट को होगा। उसके अलावा whosoever will produce these, उनको काफी हाई रेट्स मिलेगा। So you can see every party is in a win-win situation. So this is why it is a emerging concept. It is also emerging concept, but it is kind of very good concept. I can say very amazing concept. जहाँ पे आप इन्वायरमेंट का भी ध्यान रख रहे हो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हो, और साथ साथ में फार्मर्स को भी फायदा हो रहा है। सो नथिंग बेटर देन दैट। So organic farmers is a form of agriculture that relies upon techniques. ठीक है, टेक्निक्स सच एज क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, बेसिकली सारी जो नेचुरल टेक्निक्स हैं उनके ऊपर, और जो सारे आपके फर्टिलाइजर वगैरह ना यूज करके और नेचुरल तरीके से क्रॉप्स को उगाना। इसके बेनिफिट्स होते हैं, और काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, उसकी वजह से ही ये काफी राइज पे है। फर्स्ट थिंग इज इकोनॉमिकल फार्मिंग। ठीक है, फार्मर्स को महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपना जो इकोनॉमिकल मैन्योर वगैरह होता है जो फ्री रेट पे भी मिल जाता है ऑलमोस्ट, तो वो यूज करके इकोनॉमिकल तरीके से अपना प्रोड्यूस उगा सकते हैं। उसके अलावा जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स। बाहर की कंट्रीज में इनकी बहुत बहुत हाई डिमांड है। ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूस की अब्रोड में बहुत हाई डिमांड है, जिसकी वजह से फार्मर्स एक्सपोर्ट के थ्रू काफी इनकम जनरेट करते हैं। हेल्दी फूड ऑब्वियसली, जितना आपका ये फर्टिलाइजर्स वगैरह या केमिकल्स यूज होते हैं उतना ही फूड अनहेल्दी हो जाता है। तो जितना नेचुरल फूड होगा उतना हेल्दी होगा। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनिक फार्मर हैज द कैपेसिटी टू एम्प्लॉय मोर पीपल देन नॉर्मल फार्मर। तो इसकी वजह से दिस इज अ सोर्स ऑफ इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट। सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंट, एट द एंड ऑफ द डे हम एनवायरमेंट के बारे में भी वी आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ एनवायरमेंट, सो वी नीड टू थिंक अबाउट एनवायरमेंट। So it puts that one thing on top. If very sorry, if I put one thing on, one benefit on top, that should be safety of environment. Environment की safety का बहुत ध्यान रखता है। That is the major benefit. ठीक है, बाकी सब तो all are passing cloud type of things, but this is thing that is going to stay. Now
ऑब्वियसली इट हैज वेरियस बेनिफिट्स, तो उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चैलेंजेस है जो organic farming is facing, and government is constantly addressing these challenges, but still there needs good things take time. So we have few challenges in place. Less popular, it is not very popular, ठीक है, organic farming उतना popular नहीं है, although I think there's one state, if I'm not wrong, it is Sikkim. सिक्किम है एक स्टेट जहाँ पे आई थिंक प्योरली ऑर्गेनिक हो गया कुछ. Yes, I think Sikkim is a state. I need to confirm this, but Sikkim में I think purely organic farm produce होता है. I know Sikkim is a state, but उनकी कुछ achievements थी organic से related. I need to remember that. Now lack of infrastructure, marketing facilities obviously popular नहीं है. If you grow organic farming, suppose in any area in the North India, तो वहाँ पे हर कोई जो फर्टिलाइजर से प्रोड्यूस कर रहा है, एक आप अकेले निकल के आते हो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, तो आपके लिए आप उसको कहाँ बेचोगे, अकेले कहाँ जाके एक्सपोर्ट करने, मतलब वो सब बहुत टेडियस प्रोसेस हो जाएगा. बट अगर ऐसा एज अ सोसाइटी या एज अ कोई अ विलेज एक साथ मिलके अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करे, तो दे कैन डेवलप अलॉट. लो ईल्ड, ऑब्वियसली अगर फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज नहीं किया जाता तो उतनी ईल्ड नहीं आती है. शॉर्टर फूड लाइफ कम होती है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको फूड्स को प्रिजर्व करके रखने के लिए उनमें केमिकल्स डालने ही पड़ते हैं. बेसिकली आपका फूड पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम हो जाता है, तो तब तक आप उनको सही सलामत रखने के लिए केमिकल्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं, जो आपके नेचुरल चीजें वो खराब हो जाती है. तो ऑब्वियसली यू कांट डू दैट इन ऑर्गेनिक, तो उसकी वजह से शॉर्टर फूड लाइफ हो जाती है. एंड लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स, और आपके पास क्रॉप्स की चॉइस भी लिमिट हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब हर जो क्रॉप है उसको ऑर्गेनिक फार्म तरीके से आप नहीं उगा सकते. ठीक है, सो वी आर डन विद ऑर्गेनिक फार्मिंग. नाउ लेट्स कंक्लूड द रूरल डेवलपमेंट, और दिस इज अ कंक्लूजन फॉर होल चैप्टर. वी हैव सीन वी हैव सीन कि रूरल इकोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, रूरल इकोनॉमी कितनी इम्पोर्टेंट है, उसमें एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर का हर एक एस्पेक्ट हमने देख लिया. ठीक है, नाउ वी नीड टू कंक्लूड. कंक्लूजन में विल सी फ्यू थिंग्स. ठीक है, जो चीजें कुछ सही करनी है वो देखेंगे आप. सो फर्स्ट थिंग इज देट हैज टू बी अ स्ट्रेस ऑन डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन पे स्ट्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना अगर डाइवर्सिफाई होगा उतना ही फार्मर्स को फायदा होगा, उतना ही हमारे कंट्री को फायदा होगा, उतना ही रूरल डेवलपमेंट होगा. ठीक है, नाउ डेज फार्मर्स आर डाइवर्सिफाइंग. ठीक है, यू कैन सी अनयूजुअल क्रॉप्स ग्रोइंग इन द फील्ड्स. अभी हो रहा है डाइवर्सिफाई, बट स्टिल देयर नीड्स टू बी मच मोर डाइवर्सिफिकेशन. उसके लिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर अपना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, कि अगर किसी ने डाइवर्सिफाई किया है तो ऐसा नहीं है कि उसकी क्रॉप कोई खरीद ही नहीं रहा. देयर हैज टू बी अ सिस्टम इन प्लेस, तभी फार्मर्स भी डाइवर्सिफाई करेंगे. ऑब्वियसली फार्मर्स को पता है उन्हें डाइवर्सिफाई करना है, एंड दे आर ट्राइंग, बट अगर जब तक उनकी कोई एक्सटर्नल पार्टीज हेल्प नहीं करेंगी तब तक नहीं होगा. सेकेंड थिंग इज रूरल और अर्बन को लिंक करना बहुत जरूरी है. देर इज स्टिल अ वाइड गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया. ठीक है, बहुत गैप है अभी भी, एंड देर आर वेरियस फैसिलिटीज जो सिर्फ अर्बन एरिया में अवेलेबल नहीं है, रूरल में अवेलेबल है, तो उनकी वजह से उनकी डिमांड वगैरह भी कम है वहां पे. तो अगर हमारा रूरल और अर्बन अच्छे से लिंक हो जाएगा, अच्छे से लिंक में एक पार्ट ये भी कि अच्छी ट्रांसपोर्टेशन होगी, रोड्स हाईवेज होंगे, तो जो गैप है वो कम हो जाएगा. बेटर फैसिलिटीज, ऑब्वियसली रूरल एरियाज में अगर आप किसी भी एस्पेक्ट में देखो, बी इट हेल्थ केयर, बी इट एजुकेशन, और बी इट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर एक एरिया में आपको दिखेगा कि आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है. अगर आप एजुकेशन पे ध्यान दो, तो वी नीड बेटर स्कूल्स, बेटर इंस्टीट्यूशंस, वी नीड यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ हायर हायर एजुकेशन स्कूल्स लाइक कॉलेजेस वगैरह नहीं होते हैं ज्यादातर विलेजेस में, तो वहां पे भी होने चाहिए ऑब्वियसली. So we need better education in rural areas, better healthcare, better hospitals, and various things. So basically जो overall facilities है वो improve करने की जरूरत है. More emphasis on sustainable development. Sustainable development के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है. So these are the things
we need to improve upon. We have done the rural development. I hope you have understood the chapter, revised the chapter well. आपको रिवाइज करते रहना बहुत जरूरी है साथ साथ में. एंड आई होप थोड़ा बहुत कुछ अगर कुछ भूल गए थे तो वो याद आ गया वापस से. और जो इस वीडियो का पर्पस है टू डू द रिविजन वो हो गया अच्छे से. नाउ आई रिपीट द टाइमिंग ऑफ माय क्लासेस व्हिच इज 8 to 9 p.m. daily. ठीक है. I'll tell you an Academy's free special class feature. You can interact using chats and emojis. You can ask n number of doubts. You can use poll option and basically आपका पूरा जो एक experience है वो improve हो जाता है. These are free special classes. Definitely try them out. ठीक है. Before leaving, do like the video, share the video. ठीक है. Subscribe to the channel. Let's crack it. And I hope you have revised well from this video. See you in the next class. Good night and take care.